Bond breaking is endothermic or exothermic reaction? Class, bond breaking, if you are going to break the bond, what you have to do? You have to provide energy or the energy will release. जी मुस्कान मुस्फिरा Miss, endothermic reaction. जी bond breaking is a endothermic reaction. When you need to break this bond of oxygen molecule, you need energy. So if you need energy, you have to provide energy. That means the reaction is endothermic. The change is endothermic. For example, you are going to make nitrogen monoxide, NO, from oxygen gas and nitrogen gas. So you need to break the bond of oxygen molecule and the bond of nitrogen molecule to make it atoms, to make it nitrogen atom, to make it oxygen two atoms. So to make it atom from its molecules, you have to provide energy. The reaction is endothermic. When this oxygen molecule change into atom, then these atoms will combine with each other and make a compound, make a molecule, that is nitrogen monoxide. So if you want to make a bond between oxygen and nitrogen, the reaction will be endothermic or exothermic. Miss, can you repeat the question? When you are going to make bond between oxygen and nitrogen, the reaction is endothermic and exothermic. Miss, endothermic? Exothermic. Miss, No. exothermic. When you are making bond, it is exothermic. Heat will release. When two atoms combine together, the heat will release and they will make a bond. So the reaction is exothermic. First, you are going to break the bond. Breaking bond is endothermic. You have to provide heat. You have to provide energy. When you are making bond, the reaction is exothermic. You no need to provide heat or energy to the system will release energy itself. So the reaction is exothermic. Is it clear? Yes. Take another example of Yes, Miss. water. You have to make water molecule from hydrogen gas and oxygen gas. So what you have to do? Zimal, Miss, first endothermic, पहले हमने first break break करना है the bond bond. of hydrogen and make it atoms like this Yes, and then break the bonds of oxygen by and make it providing atoms. energy and break the bond of oxygen and make it two atoms. Then Yes, and then exothermic. yes, then two hydrogen atoms combine with one oxygen atom, so the reaction will be exothermic. Is it clear? Yes. Tell me Yes, Miss. how Yes, many miss. bonds you are going to break. Miss, one. No. The basic equation to prepare a water molecule is, this equation is not balanced. So if you want to check that how much bond you are going to break and how much bond you are going to form, first you have to balance the equation. So the equation is 2H2 plus O2 to make two molecules of water.
because this is a balanced equation. This is not a balanced equation. In this equation, you see there are two atoms of hydrogen and two atoms of hydrogen in product. Two atoms of oxygen, but there is just one atom of oxygen in product. So you need a balanced chemical equation. Now in this equation, you can see four atoms of hydrogen, and in product you can see here the four atoms of hydrogen. In reactant there is two atoms of oxygen, and in a product there are two atoms of oxygen. Now this equation is balanced. So tell me how many bonds you have to break. To break. Miss बनाने two. की बात नहीं कर रहे, just 3. One molecule is this one. H one molecule, H second molecule. Here is written 2 moles हैं. So that means 2 molecules हैं. One bond is this one and the other one is this one. और ऑक्सीजन का एक ही मोल है because there is written nothing, so that means there is a 1. ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है. सो हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1. तो आपने ये बॉन्ड ब्रेक करना है. दिस इज 1 बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड और ये थर्ड बॉन्ड. 3 बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं रिएक्टेंट्स में. यस और नो? Yes, miss. अगर मैंने हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है तो द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज 436 किलो जूल. अगर एक बॉन्ड ब्रेक करना है. अगर मुझे 2 बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं देन हाउ मच एनर्जी आई नीड? एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए. अगर 2 बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं Miss eight. जी Miss 872. तो आपने क्या करना है, इस 436 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, क्योंकि Two. आपको 2 मोल्स को ब्रेक करना है. इज इट क्लियर? Yes. और ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है. So the energy that is required to break this bond is 496 kilojoule per mole. Is it clear? So total energy कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कीजिए 436 को 2 से. जी 436 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने. Four Miss 36 872. multiplied by 2, it will be 872. ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है. ठीक है, 2 मोल्स की. प्लस कर दीजिए इसमें ऑक्सीजन की एनर्जी. ऑक्सीजन की एनर्जी है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने की एनर्जी दैट इज 496. यहाँ तक सबको क्लियर है? Miss 1368. 1368 kilojoule per mole of energy is required to break the bonds of the reactants. Is it clear? Yes, miss. Okay. Next step is basically to make a bond between hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen. One oxygen is making 2 bonds with hydrogen. So how many bonds you have to make?
How many bonds in a water molecule you have to make? Muskan, Zimal, Aman, Bosfera, कितने बॉन्ड बनाने हैं आपने वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए? कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं आपको इस स्ट्रक्चर में बेटा? मिस 3 Miss 2. 2 है. One is this one and the other one is this one. 2 बॉन्ड्स बनाने हैं. 2 HO बॉन्ड्स बनाने हैं आपने. 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिपेयर करने हैं. तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अब बॉन्ड बन रहा है. नाउ दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो आपने टर्म यूज करनी है कि रिलीज होती है. तो HO का बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज 463 किलो जूल पर मोल. इज इट क्लियर? ये आपको टेबल गिवन होगा, Miss. आपको वैल्यूज गिवन होंगी बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग की. मैं भी आपको टेबल भी शो करती हूँ. ये आपको समझ आ गया है? जी Yes, जिमिल. ma'am. अब यहाँ आपने 2 बॉन्ड्स बनाने हैं. तो एक बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी इज 463 किलो जूल पर मोल. इफ यू वांट टू मेक अ 2 बॉन्ड देन मल्टीप्लाई इट विद द 2. सो योर आंसर विल बी not 2. In a balanced chemical equation there are 2 molecules of water. So 2 bonds in one molecule and in a second molecule there are also 2 bonds. So how much energy is required? Multiply 463 with 4. 926 See here. H2, this is a balanced chemical equation. O2 to make 2H2O. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो HH, this is one molecule and H bond H. H bond, this is a bond, not minus. With एक मॉलिक्यूल हो गया और दिस वन इज अ सेकंड मॉलिक्यूल. और ऑक्सीजन का ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, जस्ट एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर आपका मोल कोफिशिएंट 1 है. वाटर के देखिए आपने 2 मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर करने हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि मोल कोफिशिएंट यहाँ 2 रिटर्न है. अब आपका हाइड्रोजन का एक बॉन्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको ये बॉन्ड भी डिस्ट्रॉय करना है और ये भी. तो आपको 436 को 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 बॉन्ड्स हैं. यहाँ आपको एक ही ऑक्सीजन का बॉन्ड डिस्ट्रॉय करना है. तो एनर्जी इज 496. प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए जो आपको एनर्जी बनाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो है 463. तो यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बनाने हैं आपने HO के? कितने बॉन्ड्स बनाने हैं HO और HO के बीच में? 4, Miss. 4. 1. This is a 1 HO bond. This is second, third and fourth. तो आपको 4 बनाने हैं. तो 463 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 multiplied by 463 it will be 1852 किलो जूल पर मोल. और जब आप इसका टोटल करेंगे, इसे मल्टीप्लाई और सम अप करेंगे, इट विल बी 1368. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब नो मिस. No, Miss. सबको क्लियर हो गया? Yes, miss. ठीक है. अब आप फॉर्मूला देखिए. हमने कैलकुलेट करना है वाटर फॉर्मेशन का पूरा एनर्जी चेंज, ओवरऑल एनर्जी चेंज, चेंज इन एनर्जी, हीट चेंज. हमने ओवरऑल बताना है कि कितना हीट चेंज आएगा, कितना एनर्जी चेंज आएगा, जिसे कहा जाता है डेल्टा एच. डेल्टा एच
जिसे एनर्जी चेंज भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में लिखा हो कैलकुलेट एनर्जी चेंज, तो भी आपने डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। एग्जाम में लिखा हो कैलकुलेट हीट चेंज, तो भी आपने डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। दीज आर द सेम टर्म्स। इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड मेकिंग कह लीजिए, या डायरेक्ट आप कह लीजिए डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड मेकिंग हीट एब्जॉर्ब कह लीजिए, टेकन इन कह लीजिए, हीट एब्जॉर्ब्ड ऑन, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, बट आपने बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करनी है पहले। तो फर्स्ट आपने बॉन्ड ब्रेकिंग लिखना है। हीट एब्जॉर्ब्ड ऑन बॉन्ड ब्रेकिंग, या हीट टेकन इन, या हीट एब्जॉर्ब्ड, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। ऑन बॉन्ड ब्रेकिंग माइनस का साइन लगाना है। हीट रिलीज या हीट लिबरेटेड या हीट इमिट, कोई भी टर्म यूज हो सकती है। हीट रिलीज या हीट गिवन आउट, हीट लिबरेटेड, हीट इमिटेड ऑन बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ बॉन्ड मेकिंग आना था। वेट अ सेकेंड, बॉन्ड मेकिंग जी, बॉन्ड मेकिंग, यहाँ आ जाएगा आपका बॉन्ड ब्रेकिंग। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया है? फर्स्ट आपने लिखना है हीट एब्जॉर्ब्ड ऑन बॉन्ड मेकिंग एंड हीट रिलीज्ड ऑन बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेक करते हुए कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई, ये भी हमने पीछे कैलकुलेट की है। कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है? जी बताइए, बॉन्ड कौन सा मेक हुआ है? विच बॉन्ड इज मेक? क्लास 1368. ये वाला बॉन्ड आपने बनाया है। दिस बॉन्ड, दीज बॉन्ड्स आर मेड ना, तो ये उसकी एनर्जी है, ये बना है। तो आपने पहले जो बने हैं बॉन्ड्स, वो वाली एनर्जी लिखनी है। तो दैट मीन्स आपने लिखना है 1852, ये माइनस का साइन लगा दीजिए। उसके बाद अब आपने हीट जो रिलीज हुई है बॉन्ड ब्रेक करते हुए, वो कौन सी है? अयान, अबीर, कौन सी हीट है? मिस 1368. 13868, ये वो एनर्जी है जो बॉन्ड ब्रेकिंग में एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पर आपने, सॉरी, यहाँ एब्जॉर्ब लिखना है और यहाँ पर आपने लिखना है रिलीज, क्योंकि बॉन्ड मेकिंग में रिलीज होगी और बॉन्ड ब्रेकिंग में एब्जॉर्ब होगी। तो दिस इज 1368, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट इट। Miss 484. Miss 484. 484 इज अ करेक्ट आंसर। और आपकी बुक में भी यही, आपकी बुक में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। The formula that written on your book is wrong. Energy given out when bonds are made. No, energy given in आएगा बेटा, energy given in when bonds are made. जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी तो एब्जॉर्ब होती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है given out। अपनी बुक्स पर करेक्शन कर लीजिए।
अपने बुक्स पर करेक्शन कर लीजिए, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी बॉन्ड बनाने पर मेकिंग में एब्जॉर्ब होती है, हमने पहले ठीक लिखा था। रिलीज नहीं होगी, बॉन्ड बनाते हुए लेट्स राइट द करेक्ट फॉर्मूला अगेन, दोबारा फॉर्मूला लिखिए करेक्ट, अपनी कॉपीज पे या रफ कॉपी पे नोट कर लें। रफ कॉपीज पे नोट कर लीजिए। डेल्टा H will be equals to heat energy absorbed कर लीजिए पहले, when bonds are broken, माइनस कर दीजिए हीट एनर्जी रिलीज released when bonds are made। फॉर्मूलाज पेंसिल से अपनी बुक पे करेक्ट कर लीजिए। जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। पहले आपने एब्जॉर्बिंग की लिखनी है और बाद में आपने लिखनी है जो एनर्जी रिलीज होगी। अब क्लियर है? यस मैम। करेक्ट कर लीजिए सब, इस तरह कीजिए। आपकी बुक में आंसर ठीक है पर साइन ठीक नहीं है। मिस कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन तो कितना आएगा आपका आंसर 1368 माइनस हीट एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रेक दैट इज 1852। तो आंसर आपका सेम आएगा 484 किलो जूल पर मोल विद माइनस साइन, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो जब ये प्लस माइनस माइनस होगा साइन वो हम ऐड करेंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ लिखा है। आप सबने अपनी बुक में करेक्शन कर ली है, पेंसिल से अपनी बुक में करेक्शन कीजिएगा, पेन से बुक मत गंदी कीजिएगा। सबने कर ली करेक्शन? अयान, मुस्फिरा, एमन, अबीर करेक्शन कर लिया आपने? आगे चलें। Yes, miss. मुस्फिरा आपने भी कर ली? Yes, miss. ओके, बुक में फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक है तो वो आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है? जिसकी वजह से आपके आंसर का साइन बुक में भी गलत लिखा हुआ है, ये माइनस के साथ आना है। टू मेक अ वाटर मॉलिक्यूल इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर करने वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आगे चले एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जो आपकी एग्जांपल है ये करेक्ट फॉर्म में आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेनी है। सो आज के टॉपिक में आप ये प्रॉब्लम करेंगे। जी, आज की डेट डालें, क्लास वर्क लिखिए और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है टेस्ट योरसेल्फ 17.2 ये जल्दी से नोट कर लीजिए। डू इट क्विकली। टेस्ट योरसेल्फ 17.2 आप ये टेबल बनाइए, ये जो ऊपर लिखा हुआ है
वो मत लिखिए और उसके बाद ये क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द ओवरऑल डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस मेकिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट इट क्विकली, टेबल में जो वैल्यूज दी हुई हैं ये भी लिख लीजिए। डन, लिख लिया सबने? Miss, 1 minute. जल्दी से लिख लीजिए। बॉन्ड्स लिखिए एच 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 सी एल सी एल सी एल और आगे उनकी एनर्जीज लिखिए 436 431 242। ऊपर लिखिए बॉन्ड एनर्जी किलोजूल पर मोल। फॉर्मूले की करेक्शन सबकी बुक में होनी चाहिए, अदरवाइज आपके सारे प्रॉब्लम्स गलत हो जाएंगे। बुक में जस्ट थोड़ी सी मिस्टेक है। स्विच किया हुआ है, पहले आएगा आपका एनर्जी गिवन इन व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रेक, वो पहले लिखना है, और एनर्जी गिवन आउट व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रेक वो बाद में लिखना है। तो आप वो ठीक कर लीजिएगा। पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट्स को तोड़ने के लिए, और उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी आएगी। उसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम्स में कोई मिस्टेक नहीं होगी, सारे न्यूमेरिकल्स इजीली हो जाएंगे। जी लिख लिया सबने? Yes, miss. ओके, अब मुझे बताइए क्या करना है। H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियरली नजर आ जाए। जी, हाइड्रोजन गैस है आपके पास, क्लोरीन गैस है, एंड दे आर मेकिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl गैस। बैलेंस इक्वेशन होना बहुत जरूरी है। देयर आर 2 atoms of H, 2 atoms of chlorine. In a product there is just 1 atom or 1 molecule, 1 atom of hydrogen and 1 atom of chlorine. So write here 2 to make it balanced chemical equation. अब मुझे बताइए क्या करूं मैं। सबसे पहले मुस्फिरा, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या करना है? मिस बॉन्ड्स बनाना है। नो, बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं। H और H, यहाँ पर एक बॉन्ड है H2, H2 ये एक मॉलिक्यूल है, H और H ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें। Cl Cl केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर अगर आपने पढ़ा है ठीक से तो आपको ये समझ आएगा, दिस इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वन मॉलिक्यूल। ये H2 ये एक मॉलिक्यूल है, ये H2 एक मॉलिक्यूल। अब ये बॉन्ड आपने तोड़ना है, यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड। तो अगर आप इसको टेबल में एनर्जी चेक करें तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी ऐड होगी, H को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? मिस 436। 436 किलोजूल पर मोल, प्लस आपने ये एनर्जी भी ऐड करनी है क्योंकि दो रिएक्टेंट्स हैं। जी, Cl का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? टेबल में देखें Cl मिस 242। यस 242।
हम किसी भी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज 1 ही मोल क्लोरीन का है और 1 ही मोल जो है आपके पास H2 का है। सो नो नीड टू मल्टीप्लाई इट विद एनी ऑफ द नंबर। तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए और मुझे वैल्यू बताइए। Miss 678. 436 plus 242 will be 678. So 678 is the energy to break a bond. This amount of energy is required to break a bond. अब आप आ जाइए प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने मोल HCl बन रहा है? 2, तो दैट मीन्स देयर विल बी 2 HCl bonds. ऐसा ही है, HCl and HCl having a single bond. जी बताइए अब क्या करना है? ये बॉन्ड प्रिपेयर करना है, HCl और HCl का बॉन्ड प्रिपेयर करना है। तो 2 बॉन्ड्स प्रिपेयर करने हैं। एक बॉन्ड प्रिपेयर करने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी? कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी? मिस 431. 431। और इसके तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मोल्स HCl है, तो दूसरा डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? बनाने के लिए, नॉट डिस्ट्रॉय, मेकिंग हो रही है। अब HCl बनाने के लिए मिस 862. तो 431 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 431 इसके लिए भी चाहिए और इसके लिए भी। तो आप या इन दोनों को ऐड कर दें या 431 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 431 मल्टीप्लाई विद 2 इट विल बी 862। ये वो एनर्जी है जो बॉन्ड बनाने के लिए रिलीज हुई है और ये वो एनर्जी है जो बॉन्ड तोड़ते हुए हमने सिस्टम में ऐड की है। तो फॉर्मूले में लिख लीजिए। फॉर्मूला हमने अभी देखा है, दैट इज हीट एब्जॉर्ब ऑन बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि रिएक्टेंट्स वाली हीट लिखनी है आपने, माइनस हीट रिलीज्ड ऑन बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, मिस यहाँ पे मेकिंग नहीं आएगा बाद वाले में? बाद वाले में मेक आएगा, यस, ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग। जी अब कर लीजिए। हीट एब्जॉर्ब्ड ऑन बॉन्ड ब्रेकिंग कितनी एब्जॉर्ब की है? 678, ऐसा ही है। तो यहाँ लिख दीजिए 678 माइनस हीट रिलीज ऑन बॉन्ड मेकिंग। कितनी हीट रिलीज हुई है बॉन्ड बनाते हुए? 862, ऐसा ही है। यहाँ पर ये एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड बनाते हुए, ये 2 बॉन्ड्स बनाते हुए दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो ये आप यहाँ लिख दीजिए। जी प्लस माइनस, यहाँ -184. माइनस कीजिए, -184। माइनस के साइन के साथ इसलिए लिखा है क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। यूनिट लिखना नहीं भूलना, किलो जूल। डेल्टा H having a unit that is kilojoule, तो किलो जूल लिखना नहीं भूलना। दिस इज योर आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन? No. सबको क्लियर हो गया? ये बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, स्विच कर दीजिएगा। जस्ट आप अपना फॉर्मूला देख लीजिएगा क्या मिस्टेक है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बुक में भी आंसर ठीक कर लीजिएगा, माइनस के साथ आएगा। आज के लेक्चर में आज हमने बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग के ओवरऑल डेल्टा H कैसे कैलकुलेट कर